শনিবার ১৬ই মার্চ ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভ ২০২৪-এর মঞ্চে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশে ইজ অফ লিভিং অর্থাৎ জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য কাজ করছে বলে জানান তিনি, যার ফলে জনগণকে কোনো সরকারি কাজের জন্য আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সরকারের যেন অভাব না হয়, সরকারের যেখানে প্রয়োজন সেখানে থাকা দরকার। কিন্তু এর কি মানে? রোজ সব কিছুতে সরকার নাক গলাবে? জীবনের সব কিছুতে সরকার, দেশে সব কিছুতে সরকারের প্রয়োজন নেই। ২০৪৭-এ লক্ষ্য পূরণ হলে আমি সকলের জীবন থেকে সরকার বাদ দিয়ে দেব। জীবনে সরকারের কোনো দরকার নেই, তাদের মন খুলে বাঁচতে দেওয়া উচিত। নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য মুক্ত আকাশ খুলে রাখা উচিত। আমি ৪০,০০০-এর বেশি কমপ্লায়েন্স বন্ধ করে রেখেছি। দেশের যে কোনো কাজের জন্য সরকারিভাবে দপ্তরে যেতে হবে না, লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এসব কাজ অনলাইনেই হয়ে যাবে। ট্যাক্স, সম্পত্তি, সমস্ত কাজ যেন বাড়িতে বসেই হয়ে যায়, লাইনে দাঁড়াতেই না হয় সেই ব্যবস্থা করছি। তিনি এও বলেন যে ইজ অফ লিভিং শুধুমাত্র এসব সুবিধা বিস্তার করা নয়, ইজ অফ লিভিং তখন বাড়বে যখন গরিব মধ্যবিত্তের পকেটে টাকা থাকবে। আমাদের সরকার অর্থ বাঁচানোর কাজ করছে। যেমন এখন রেলের টিকিট কাটার সুবিধা অনলাইনে পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে সমস্ত কাজই সহজ করে তোলার পরিকল্পনা ও তার সম্পাদনের কাজ করছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, পিএম স্বনিধি যোজনা কৃষকদের জন্য ২ লক্ষ নতুন গোডাউন তৈরি, যাতে তাদের কোনো অতিরিক্ত ফসল ফেলতে না হয়। যখন প্রয়োজন তখন তারা বিক্রি করতে পারবেন। এভাবে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করার লক্ষ্য নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। মোদী এও বলেন যে এখন মাত্র ৫-৬ দিনে পাসপোর্ট বাড়িতে চলে আসে। কি করে এই বদল হবে? সরকার যখনই জীবন সহজের লক্ষ্য নিল, কাজ সহজ হয়ে গেল। আজ দেশ জুড়ে প্রায় ৫০০ পাসপোর্ট কেন্দ্র রয়েছে। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনবো। दबाव भी नहीं और सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। गरीब है, उसको लगना नहीं चाहिए कि संकट के समय कोई आया नहीं। अभाव नहीं होना चाहिए। सरकार की जहां जरूरत है सरकार होनी चाहिए। लेकिन ये क्या तरीका है? आए दिन सरकार टांग अड़ाती रहे, जिंदगी की हर चीज में सरकार। और मैं तो अगर 2047 तक का मेरा मिशन पूरा हुआ तो मान लीजिए मैं हर एक की जिंदगी से सरकार बाहर निकाल दूंगा। सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार होनी ही नहीं चाहिए। उसको खुली छूट होनी चाहिए अपनी जिंदगी जीने की। अपने सपनों को साकार करने के लिए खुला आसमान उसके लिए छोड़ देना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमने ईज ऑफ लिविंग के लिए, जैसा मैंने कहा ना, हमने 1,500 कानून खत्म किए। वैसे ही भांति भांति की चीजें सरकार मांगती रहती है। अच्छा, ये फॉर्म लाए, ये ले आओ, ये लाए, वो ले आओ, वो लाए, वो लाए। आपका घर यहां है, अच्छा आपके घर के सामने कौन रहता है, ले आओ। यानी ये पता नहीं सरकार में आदत बन गई है। आप जानकर के खुश हो जाएंगे, मैंने 40,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया और उन्हें बहुत आसान बना दिया है। 40,000। आप सामान्य नागरिक को क्या तकलीफ होती होगी भाई? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने ही न पड़े, लाइनों में लगना ही न पड़े। बिजली बिल हो, हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, प्रॉपर्टी का काम हो, स्कॉलरशिप के लिए सब अप्लाई करना हो, ऐसे दर्जनों काम अब ऑनलाइन हो जाते हैं। अब रेलवे स्टेशन पर आपको कोई कतार नहीं दिखती होगी। बदल गई दुनिया। और साथियों, ईज ऑफ लिविंग का मतलब सिर्फ इस तरह की सुविधाओं का विस्तार ही नहीं होता है। ईज ऑफ लिविंग तब बढ़ती है जब गरीब और मध्यम वर्ग की जेब में कुछ पैसे बचते हैं, उसकी बचत होती है। हमारी सरकार की योजनाएं कैसे लोगों का पैसा बचा रही हैं, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और अभी आप पढ़ रहे हैं तो शायद वहां इस पर उठाइए काम, अरुण जी, आपकी यूनिवर्सिटी को लगाइए।
2014 में 2 लाख रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स देना होता था। 2 लाख इनकम पर इनकम टैक्स था। आज 7 लाख रुपए की सालाना इनकम पाने वाले को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं है। শনিবার 16 মার্চ ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভ 2024-এর মঞ্চে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য কাজ করছে বলে জানিয়েছেন তিনি, যার জন্য জনগণকে কোনো সরকারি কাজের জন্য আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সরকারের যেন অভাব না হয়, সরকারের যেখানে প্রয়োজন সেখানে থাকা দরকার। কিন্তু এর কি মানে? রোজ সবকিছুতেই সরকার কি নাক গলাবে? জীবনের সবকিছুতে সরকার, দেশের সবকিছুতে সরকারের প্রয়োজন নেই। 2047-এর লক্ষ্য পূরণ হলে আমি সকলের জীবন থেকে সরকার বাদ দিয়ে দেব। জীবনে সরকারের কোনো দরকার নেই। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, শুনবো। दबाव भी नहीं और सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। गरीब है, उसको लगना नहीं चाहिए कि संकट के समय कोई आया नहीं। अभाव नहीं होना चाहिए। सरकार की जहां जरूरत है सरकार होनी चाहिए। लेकिन यह क्या तरीका है? आए दिन सरकार टांग अड़ाती रहे, जिंदगी की हर चीज में सरकार। और मैं तो अगर 2047 तक का मेरा मिशन पूरा हुआ तो मान लीजिए मैं हर एक की जिंदगी से सरकार बाहर निकाल दूंगा। सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार होनी ही नहीं चाहिए। उसको खुली छूट होनी चाहिए अपनी जिंदगी जीने की। अपने सपनों को साकार करने के लिए खुला आसमान उसके लिए छोड़ देना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमने ईज ऑफ लिविंग के लिए, जैसा मैंने कहा ना, हमने 1,500 कानून खत्म किए। वैसे ही भांति भांति की चीजें सरकार मांगती रहती है। अच्छा, ये फॉर्म लाए, ये ले आओ, ये लाए, वो ले आओ, वो लाए, वो लाए। आपका घर यहां है, अच्छा आपके घर के सामने कौन रहता है, ले आओ। यानी ये पता नहीं सरकार में आदत बन गई है। आप जानकर के खुश हो जाएंगे, मैंने 40,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया और उन्हें बहुत आसान बना दिया है। 40,000। आप सामान्य नागरिक को क्या तकलीफ होती होगी भाई? সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে অন্যান্য খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করে নিন।